Yes, open your book. Lesson number 6, page number 37 of your book, Moments. Weathering the storm in Erasmus. This is a true story about an event जब साइक्लोन ने उड़ीसा में बॉर्डर पर हिट किया था in October 1999. What happened? This we'll read in this lesson. हर्ष मंदर ने इसको लिखा है. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? So, this is the story of a survivor, Prashant, who was a young man. और ये जो साइक्लोन था इसमें बहुत सारे गांव जो थे वो बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए थे कंप्लीटली और हजारों लोग मारे गए थे. और 2 रातों तक ये जो था प्रशांत ये घर की छत पर रुका रहा. एंड 3rd day he decided to go to his village. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasmus, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. 27 October 1999 को प्रशांत इराजमा गया. इरसमा जो कि एक छोटा सा कस्बा है कोस्टल ओडिशा पर, एंड उसके गांव से उसका डिस्टेंस है 18 किलोमीटर्स. एंड हिज मदर had died 7 years before this date. और वहां वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गया था. शाम को वहां बहुत भयंकर तूफान आने की संभावना हो गई. तूफान आ गया. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. इतना भयानक तूफान था, बहुत तेज हवाएं चलने लगी. ऐसा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. मूसलाधार बारिश जिसको हम बोलते हैं, तो लगातार, incessant means continuously without stopping, लगातार वो बारिश होती रही और बहुत सारे जो पुराने पेड़ थे वो उखड़ गए and they were crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. और विंड का जो प्रेशर था वो इतना तेज था, स्पीड इतनी तेज थी कि घर उसमें उड़ते हुए जा रहे थे और लोगों की चीखें गूंज रही थी. The angry waters swirled into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. और उस हवा के साथ ही जो पानी था वो भी आ रहा था और जो उसके फ्रेंड का घर था उसमें नेक डीप यानी गर्दन तक पानी भर चुका था. बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, ब्रिक और मोटार की बनी हुई थी, तो दैट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ. वो उसमें
झेल सकती थी विंड की वेलोसिटी को, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी। लेकिन रात के किसी समय 2 पेड़ उस घर पर गिर गए टूट करके, और उसकी वजह से जो छत और दीवारें थी वो थोड़ी डैमेज हो गई। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. और ये जो भयानक डिस्ट्रक्शन था, विनाश था, जो साइक्लोन की वजह से वहां हो रहा था, ये अगले 36 घंटों तक चलता रहा। हालांकि विंड की जो स्पीड थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग तक। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. और घर में पूरा पानी भर चुका था, तो प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी वो सब छत पर उन्होंने शेल्टर लिया। अपने आप को बचाने के लिए वो छत पर बैठ गए। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. और जब अगली सुबह भोर जब हुई थी, बिफोर द सनराइज, तो उसने जो झलक, ग्लिम्स यानी झलक देखी उस तबाही की, जो उस सुपर साइक्लोन की वजह से हुई थी, जो सुपर साइक्लोन अपने साथ लाया था, तो उसको देख करके वो एकदम शॉक्ड रह गया। और वो जो झटका उसको लगा था वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. और चारों तरफ सिर्फ ब्राउन कलर का वाटर, जैसे चादर बिछ गई हो, तो सब जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जहां तक भी नजर जाती थी सब कुछ पानी में डूब चुका था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। कहीं कहीं थोड़े बहुत घरों के जो सिम्टम्स हैं, निशान है, वो दिखाई दे रहे थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. तो चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय उस ब्राउन वाटर के, एंड उस पानी में एनिमल कार्केसेस यानी कि डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड द डेड बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो ये सब पानी में तैर रहे थे। और जो बड़े बड़े विशाल पेड़ थे वो भी गिर गए थे, और 2 कोकोनट ट्रीज उनके घर की छत पर भी टूट कर गिरे थे। ये एक तरह से उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि मुसीबत के साथ साथ एक ब्लेसिंग भी होना। तो 2 कोकोनट ट्रीज ने उनकी रूफ और वॉल्स को थोड़ा डैमेज किया था, बट इट वाज अ ब्लेसिंग, एक छुपी हुई ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो जो कोकोनट्स हैं उस पेड़ में जो लगे हुए थे, उनसे वो लोग अपना काम चलाया उन्होंने अगले कुछ दिनों तक, भूखे मरने से उनको बचाया। स्टार्विंग यानी भूखे मरना। तो जो फैमिली वहां फंस गई थी उनके लिए it was a blessing. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's fears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? और अगले 2 दिन तक प्रशांत वहीं उसके फ्रेंड की फैमिली के साथ घर की खुली छत पर बैठा रहा, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे। और जो लगातार बारिश हो रही थी उसमें वो लोग भीगते रहे, ठंड से कांपते रहे, और प्रशांत के आंसू भी उस बारिश के पानी में धुलते रहे, क्योंकि वो ये सोच सोच करके परेशान था कि उसका गांव जो वहां से सिर्फ 18 किलोमीटर्स पर था, तो वहां पर उसकी फैमिली, उसका गांव बचा होगा या नहीं, और क्या वो उनसे कभी दोबारा मिल पाएगा। Bereaved means lost a close relation or friend,
through her death. तो वो क्या उसको उसकी फैमिली वापस मिलेगी या वो सब उनकी डेथ हो चुकी होगी? He was very worried thinking about all these things. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. और 2 दिन जो निकले वो ऐसा लग रहा था प्रशांत को जैसे 2 साल हो, बहुत लंबे लग रहे थे उसको। 2 दिन के बाद बारिश रुकी, सीज्ड मीन्स टू स्टॉप, और धीरे धीरे जो बारिश का पानी था वो कम होने लगा। टू रिसीड यानी टू गो बैक, वो कम होने लगा। एंड प्रशांत अपनी फैमिली को ढूंढने निकलना चाहता था, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत खतरनाक थी। तो उसके फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा और इंतजार कर ले, बट प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू गो। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. और उसने एक बड़ी सी लंबी स्टिक ली और अपने इस 18 किलोमीटर के अभियान एक्सपेडिशन पर निकल लिया, जहां उसको अपने गांव वापस पहुंचना था थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स, और चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसको वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसको स्टिक का यूज करके ये लोकेट करना था कि रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, कहाँ पानी कम है, where it is most shallow and where it is deep. At places it was waist deep and progress was slow. और कई जगह पानी बहुत गहरा था, उसकी कमर तक पानी आ जाता था, तो वो उसको बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना था। At several points he lost the road and had to swim. After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. और कई जगह पानी इतना गहरा था कि उसको तैरना पड़ता था, और कुछ दूर जाने के बाद उसको थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसको 2 फ्रेंड्स मिल गए जो उसके अंकल के फ्रेंड्स थे। वो भी अपने गांव वापस लौट रहे थे, तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो साथ में आगे बढ़ेंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, जो दृश्य था वहां पर वो और ज्यादा भयानक, खतरनाक हो गया, क्योंकि कई जगह जो ह्यूमन बॉडीज और carcasses of animals जो वहां तैर रहे थे, डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स, वो बार बार आकर के उनसे टकरा रही थी, एंड दे हैड टू पुश देम अवे, और उसके बाद अपना आगे का रास्ता उनको बनाना होता था। इन एवरी विलेज दैट दे पास they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. और जितने भी गांवों से बीच में वो लोग निकले तो वहां पर कोई भी घर नहीं बचा था। ऑल द हाउसेस वर वॉश्ड अवे, सब पानी के साथ बह चुके थे। अब प्रशांत जो था वो बहुत जोर से रोने लगा, बिकॉज उसको यकीन होने लगा था कि उसकी फैमिली नहीं बची होगी इस कैटेस्ट्रॉफी यानी इस भयानक मुसीबत से, इस विपत्ति से। Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught,
mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. And finally, प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच गया और जैसे ही उसने वहां का जो सीन था वो देखा, उसका दिल एकदम से बैठ गया। वो बिल्कुल घबरा गया क्योंकि जहां कभी उनका घर हुआ करता था वहां सिर्फ छत बची थी और कुछ उनके जो सामान थे वो ट्रीज के ब्रांचेस में फंसे हुए थे, अटके हुए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर। उसने तय किया कि वहां जाकर के अगर कोई उसके फैमिली मेंबर्स बचे हैं तो वो उनको ढूंढता है। अमंग द फर्स्ट पीपल he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने जिसको देखा वो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि उसकी नानी थी, और जो भूख से बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। एंड शी रैन टुवर्ड्स हिम, हर आइज वर ब्रिमिंग, आंखें छलक रही थी क्योंकि ये एक मिरेकल था, ये एक करिश्मा था। उन लोगों ने भी उसको उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचा होगा, जैसे कि उसने सोचा था। इन द सेम वे they were thinking about him. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. और जल्दी ही ये खबर पहुंच गई सब लोगों में और उसकी जो पूरी फैमिली थी वो वहां आ गई और बहुत राहत की सांस उन्होंने ली। दे वर वेरी हैप्पी टू सी हिम अलाइव। और प्रशांत भी बहुत खुश था अपनी फैमिली को जिंदा देख करके। तो सारे लोग वहां मौजूद थे, हिज ब्रदर, सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, सब लोग वहां प्रेजेंट थे। मॉटले मीन्स डिस्परेट, जो हैरान परेशान थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अगली सुबह उसने अपने आप को थोड़ा संभाला तो उसने देखा कि जो शेल्टर की सिचुएशन है वो बहुत खराब है और करीब 2500 लोग वहां पर शेल्टर लिए हुए थे। 86 लाइव्स, 86 लोग मारे जा चुके थे गांव में, और जितने भी घर थे 96 हाउसेस वो सब देवर वॉश्ड अवे, यानी कि वो सब पानी के साथ बह गए थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और उन लोगों का उस शेल्टर में चौथा दिन था, अभी तक उनको कोई एड, कोई हेल्प नहीं मिली थी। दे वर जस्ट सर्वाइविंग ऑन ग्रीन कोकोनट्स। कोकोनट्स खा करके वो अपना काम चला रहे थे, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए वो सफिशिएंट नहीं थे। लोग ज्यादा थे और एंड डिसऑर्डरली, tumult means uproar of a disorderly crowd, और सब कुछ व्यवस्थित नहीं था, जिसको जो हाथ लगता था वो ले लेता था। तो ऐसी कंडीशन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting.
प्रशांत जो कि सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड था, उसने लीडर बनने का डिसाइड किया कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आई हैव टू डू समथिंग। तो उसने एक जो यंगस्टर्स का ग्रुप था उसको ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठे किया, यंगस्टर्स एंड एल्डर्स, उनको अपने साथ में लिया और उनको कहा कि हम मर्चेंट से जाकर के चावल मांग कर लाते हैं। और इस बार वो लोग सक्सेसफुल रहे। उस ग्रोसर से, किराने वाले से वो लोग चावल लेकर के वहां पहुंचे। हालांकि चावल जो था वो सड़ चुका था, बट नोबडी केयर्ड क्योंकि वो लोग भूखे थे एंड एनीथिंग वुड बी इनफ फॉर देम इन दैट कंडीशन। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. तो उस दिन जो गिरे हुए पेड़ थे उनकी ब्रांचेस को इकट्ठा करके फायर प्रोवाइड करवाया गया, आग जलाई गई ताकि चावल को पकाया जा सके। और 4 दिनों में पहली बार वहां के जितने भी सर्वाइवर्स थे, यानी कि जो लोग बचे हुए थे, जो उस शेल्टर में मौजूद थे, उन सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया। अब उसका अगला टास्क था उस शेल्टर की साफ सफाई का, जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी थी, और उसके अलावा जो लोग घायल थे उनके वुंड्स, फ्रैक्चर्स का इलाज करने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए he organized a team of youth volunteers, young volunteers की एक टीम उसने तैयार की। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. और 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने वहां कुछ खाने के पैकेट्स गिराए, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो इन लोगों ने, प्रशांत ने जो टीम तैयार की थी, उन्होंने कुछ खाली बर्तन इकट्ठे किए और बच्चों को सैंड में, धूप में लिटा दिया, सैंड पर, रेत पर लिटा दिया। और यूटेंसिल्स को, यानी उन बर्तनों को, उनके स्टमक पर रख दिया ताकि एक मैसेज वो उन गुजरते हुए हेलीकॉप्टर्स को दे सकें कि देयर आर सम पीपल एंड दे आर हंग्री। द मैसेज गॉट थ्रू and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, air dropping food and other basic needs. मैसेज हेलीकॉप्टर्स तक पहुंच गया और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली वहां खाने के पैकेट और बाकी जरूरत की चीजें गिराने लगे। प्रशांत found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. और फिर प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए थे, यानी दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो उन सबको उसने इकट्ठा किया और जो वहां की विमेन थी उस शेल्टर में, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उन बच्चों की देखभाल करें। एंड द मैन, जो आदमी लोग थे, उनका काम था फूड और मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना शेल्टर के लिए, बाकी जरूरत की चीजें इकट्ठी करना। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives
The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. तो कई हफ्ते गुजर गए। प्रशांत जल्दी ही ये पहचान गया कि जो औरतें और बच्चे हैं वो अपने दुख में और ज्यादा डूबते जा रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। तो उसने जो वुमेन थी उनको परसुएट किया, उनको मजबूर किया कि जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है एनजीओ के द्वारा, एक एनजीओ ने जो स्टार्ट किया है, वहां पर वो लोग जाकर काम करें, सो दैट दे मे गेट फूड बाय वर्किंग फॉर द एनजीओ। और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ही लव टू प्ले क्रिकेट, तो उसने क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए ताकि बच्चे थोड़ा रिलीफ फील करें, थोड़ा खुश हो सकें। देन दूसरे वॉलंटियर्स के साथ मिल करके उसने जो विडोज, जो अपने हस्बैंड्स को खो चुकी थी औरतें और जो बच्चे थे, उन सब से उन सबको मोटिवेट करना स्टार्ट किया ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। जो गवर्नमेंट प्लान्स थे वो थे कि ऑर्फन्स और विडोज के लिए इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए जाएंगे, अनाथालय टाइप से जो भी थे। लेकिन इस आइडिया को वो लोग मानने के लिए तैयार, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज ऐसा उनका सोचना था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं उनको कोई प्यार नहीं मिलेगा और जो विडोज हैं वो भी अकेली रह जाएंगी, दे विल हैव टू सफर द लोनलीनेस देयर। So Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो प्रशांत ने एक ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा कि हम अपने ही गांव में, अपने समाज में, अपनी जाति में, अपनी जो संप्रदाय है, अपनी जो कम्युनिटी है, उसी में हम रीसेटल हो जाएं, यानी कि जो विडोज अकेली रह गई हैं वो इन ऑर्फन बच्चों को प्रोटेक्शन दें, शेल्टर दें और इनके साथ रहें, ताकि बच्चों को उनका प्यार मिल सके और जो विडोज है वो भी लोनलीनेस को सफर नहीं करें, वो भी अकेली नहीं हो। इट इज 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और 6 महीने बाद जो ये तबाही हुई थी सुपर साइक्लोन के द्वारा, जो बर्बादी हुई थी, उसके 6 महीने बाद प्रशांत को थोड़ा राहत महसूस हुई, क्योंकि उसको इतने दिनों में अपनी पीड़ा को देखने का समय ही नहीं मिला था। ही वॉज बॉदर्ड अबाउट अदर्स, दूसरों को संभालने में वो लगा हुआ था, दूसरों को सेटल करने में लगा हुआ था। और एवरीबडी, जो विडोज हैं और चिल्ड्रन हैं उसके गांव के, वो सब उसको एडमायर करते हैं। दे ऑल वर एडमायरिंग हिम। ये सिर्फ एक वो था जिसने दुख की घड़ी में, उस तकलीफ में उन लोगों की मदद की और उनको इस ट्रॉमा से, इस सिचुएशन से बाहर निकाला। तो दिस वाज द रियल स्टोरी। Anything you want to ask? In the next class, we'll discuss the word meanings and the question answers. कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो you can ask me any word, any sentence, any paragraph. Do you want to ask anything? Manish, Radhika, Krishna.
No queries? Can you hear me? Radhika, Krishna, Manish. Okay then, read the lesson and learn the word meanings. Goodbye.